संस्कार को तिरोहित करके 11 लोगों को भाषित करने वाले ज्ञानदीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। आप भी हाथ लगा दीजिए। ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते। एक बार और कैंडल लगा दीजिए। आप हाथ लगा दीजिए साथ में लगा दीजिए, साथ में लगा दीजिए। आगे नहीं जा रही। देव की आराधना करते हैं और इसी परंपरा का अनुशीलन करते हुए प्रस्तुत है माँ दुर्गा की वंदना। दुर्गा शक्ति का विकराल रूप, समस्त सृष्टि का आधार ब्रह्मांड, जिनके प्रकोप से निश्चित है अशुभ का विनाश, उस सिंहवासिनी दुर्गा को है कोटि कोटि प्रणाम। माया के स्वरूप में अनेक भेद छिपे हैं। इन रहस्यों को उजागर कर कर्म, भक्ति व ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने का प्रबल माध्यम भी यही है। हमें चाहिए तो बस पूर्ण समर्पण।
शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते 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 ओम दुर्गायै नमः 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 आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति की। सच, यह स्तुति, यह भक्ति ही तो हमारी शक्ति है। इसी शक्ति के सहारे तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विजय पाते आए हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति ना तो केवल हमारा सहारा है, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। यही तो इस भवसागर की अतुल गहराइयों में जाने से रोक पाती हैं। जब जब चंचल मन इस सांसारिकता की ओर आकर्षित होकर समस्त वर्जनाओं को तोड़ उसमें डूब जाने को उद्यत होता है, तो हमारी यही आध्यात्मिक शक्ति हमारा सहारा बनकर हमें सत्य का साक्षात्कार करा देती है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रियांशु भैया को। Thank you, Renuka. Good evening, viewers, on this auspicious, stunning, and charming evening. I, Priyanshu, is here to entertain all of you. After watching the fantastic performance of our students, which was very graceful and sparkling, showered the blessings of Ma Durga over us to fill us with a great energy and enthusiasm. Now we shall install this energy and zeal as our kids are going to give up a new message by their performance. God gives us a pleasant nature where lives many creatures. It helps us in many ways.
to make our future great. It has a charming beauty. To care it is our duty. For one thing, I request you please, save the forest, don't cut the trees, don't cut the trees. Forests are the true wealth of our country. They are called green gold because they are our country's wealth. It is God's great gift and we have no right to spoil them. Here, I would like to present some lines. Woods are lovely, dark and deep, and we have promises to keep, and we have promises to keep them. Now, we live in towns and villages, far away from the forest. So, it is easy enough to imagine that really we do not need the forest anymore. But it is not the reality. Forests play a very important role in maintaining the environmental balance. Besides this, they provide us the peace of mind and patience. What is this life full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs. No time to stand beneath the boughs. Now our saplings are going to give up a new message by their performance. Please enjoy them and encourage them by your clapping. Thank you.
our charming and most lovable Tiny Tots have imparted this precious message by their mesmerizing and exhilarating performance. Being very short in length, they give us a very large valuable message that how can we give neat and clean environment for coming generations. Now, after this fabulous performance, we are again trying to re-echo the vibrations of colorful harmony before you by our next enchanting and creative performance. Respected audience, 7 is a very special number as it has a lot of specialities with it. We have 7 wonders, 7 seas, 7 oceans, 7 continents, 7 sisters in the east, 7 dwarfs, Sab Sindhu Pradesh, Sat Sur, 7 days in a week, 7 colors in a rainbow, blah blah blah. So now, my dear spectators, be prepared as our pretty and beautiful nymphs are ready to spellbound you by the magic of 7 as they are going to present before you the program named Saptarang. They are presenting 7 different forms of dance of 7 different states. Bihu of Assam, Dumuchi of Kolkata, Bhangra of Punjab, Bharatnatyam of Kerala, Lavani of Maharashtra. Last but not the least, above all are UP. So please welcome them with a huge round of applause. Thank you.
आभा से युक्त त्योहारों उत्सवों की मनमोहक प्रस्तुति का। सच, ये त्योहार जीवन की एक रस्ता या कहा जाए तो निरस्ता को भंग कर देते हैं और बुझे एवं निराश मन में स्फूर्ति, चेतना तथा आशा का संचार कर देते हैं। जहाँ एक ओर ये त्योहार या उत्सव हमारे हृदय को उल्लास से भर देते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेम, सद्भाव आदि का शुभ संदेश देकर व्यक्तिगत अनुभूति के साथ साथ समष्टि की सृष्टि कर देते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहन ऋतिका को। बेटियां सौभाग्य की परछाइयां हैं, जिंदगी की धूप में अमराइयां हैं। जब परिंदों की तरह धर में चहकती हैं, दूर हो जाती सभी तन्हाइयां हैं। ये बेटियां ही सृष्टि की सच्चाइयां हैं, ये बेटियां ही सृष्टि की सच्चाइयां हैं। हमारी गौरवशाली परंपराओं में बेटियों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसे शक्ति स्वरूपिणी तथा सृष्टि की अधिष्ठात्री माना गया है। यदि 21वीं शताब्दी की ओर ध्यान दिया जाए तो लोग इसे ज्ञान की शताब्दी कहते हैं, परंतु इसे बेटियों के योगदान की सदी कहना गलत न होगा। आज हमारी बेटियां पुरुषों से पीछे नहीं, अपितु उनसे बहुत आगे निकल चुकी हैं। जहां पहले पुरुषों का वर्चस्व था, आज वहीं हमारी बेटियां अपनी अंतर्निहित प्रतिभा से उसे मिथ्या सिद्ध कर दिया है। क्षेत्र कोई भी हो, हमारी बेटियां पीछे नहीं हैं, चाहे वह वीरता का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो या फिर विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी में उनका योगदान प्रशंसनीय है। स्वतंत्रता के महासंग्राम में प्रथम बिगुल की गूंज से लोगों में जोश व उत्साह पैदा कर देने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को हम कैसे भूल सकते हैं। स्वतंत्र भारत की गरिमा का अपने मधुर कंठ से गुणगान करने वाली भारत कोकिला सरोजनी नायडू को हम सभी जानते हैं, जिनकी वाणी में स्वयं मां शारदे का वास है। ऐसी लता मंगेशकर बेटियों को हीन तथा कमजोर मानने जैसी भ्रामक सोच को प्रथम IPS ऑफिसर बनकर इस सोच को मिथ्या सिद्ध कर देने वाली किरण बेदी को हम सभी जानते हैं। ओलंपिक में अपनी तेज रफ्तार से संपूर्ण विश्व को लोहा मनवाने वाली उड़न परी PT उषा के नाम से कौन अनभिज्ञ है। पृथ्वी पर ही नहीं अपितु अंतरिक्ष पर भी अपनी सफलता का परचम फैलाने वाली सुनीता विलियम्स व कल्पना चावला भी तो हमारी ही बेटियां हैं। सच, आज हमें अपनी विचारधारा में परिवर्तन कर और विस्तार देकर लोगों के मन में हमारी ही उपेक्षा से उपजने वाले हीन भाव को नष्ट करने का प्रयास जारी रखना होगा। क्यों न प्रयास हम ही से हो। आइए गुनगुनाने की कोशिश करें, एक दीप जलाने की कोशिश करें। दे रहा है अंधेरा चुनौती हमें, एक सूरज उगाने की कोशिश करें, एक सूरज उगाने की कोशिश करें। प्रयास की इसी कड़ी के रूप में प्रस्तुत है एक मोहक प्रस्तुति, जिसमें अनमोल बेटियों के रूप को नृत्य के माध्यम से अभिनीत करेंगी विद्यालय की कुछ बहनें। धन्यवाद। बेटियों से बनता है सशक्त देश समाज, बेटियों से बनता सशक्त देश समाज। इनकी सुरक्षा करो मित्रों, कर लो इन पर नाज, कर लो इन पर नाज। Dear viewers, this act clearly shows in which direction the wind is blowing. Now, an old picture of an ideal sun is broken, as we cannot imagine the existence of mankind without our daughters. As we need our family to run, we need a daughter and a son. We have given to other many lessons and done a lot of discussion. But now it's time for girl child education. Girl child education. So save girl child and respect women, who is the idol of love, affection, commitment, service and patience, and take relevant measures to encourage them, which is only possible through education, as girls are also part and parcel of our whole life. Sincere students of our school who participated in this amazing presentation displaying different roles are Tuisha as Rani Lakshmibai, Ayushi Singh as Lata Mangeshkar, Khushi Pandey as
खुशी पांडे एस किरण बेदी, शिवांगी यादव एस कल्पना चावला। Thanks for encouraging them. श्रीमती प्रतिभा दुबे जी, आपके गौरव का है करना उचित बखान, करना उचित बखान। डॉक्टर उदय सिंह अवस्थी जी, प्रबंध निदेशक इसको मंच पर विराजमान हैं। छात्र संसद के प्रधानमंत्री भैया चिरंजीव संजीव कुमार से मेरा आग्रह है कि उनका माल्यार्पण और भाई द्वारा स्वागत करने की कृपा करें। 1967 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आप अत्यंत ऊर्जावान, उदार, उत्साही व राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के चेयरमैन और डायरेक्टर भी रहे हैं। 1993 में आपने इफ्को के एमडी का कार्यभार संभाला और आपके प्रयासों से DAP, NPK खाद की उत्पादन क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। सन 1993 से 96 के मध्य आप फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे तथा अप्रैल 1997 में आप इंटरनेशनल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन पेरिस के प्रेसिडेंट बने। आपने यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 6ठे उच्च स्तरीय शासकीय सत्र में औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आपने अपना महत्वपूर्ण संबोधन भी दिया। आप कई भारतीय व विदेशी कंपनियों के बोर्डों के अध्यक्ष हैं, जैसे इफ्को, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड, इफ्को किसान बाजार लिमिटेड, इंडियन पोटास लिमिटेड, ओमान इंडिया फर्टिलाइजर लिमिटेड, मस्कट ओमान, किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग दुबई आदि हैं। आप मेसर्स इंडस्ट्री डी सेनेगल, डकार सेनेगल, इफ्को कनाडा एंटरप्राइज लिमिटेड कनाडा, इफ्को किसान संचार लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। इफ्को किसान सेज लिमिटेड एवं जार्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी ओमान जार्डन के उपाध्यक्ष भी हैं। विश्व का बृहद भ्रमण कर चुके डॉक्टर अवस्थी जी ने 30 से ज़्यादा तकनीकी पत्रों एवं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया भारत में उर्वरक उद्योग पत्रिका का संपादन भी किया है। आप कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। 1996 में उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड, दिसंबर 2000 में CEPM डॉक्टर डेविडसन फ्रेम अवार्ड, जो कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन में मुख्य भूमिका को दर्शाता है, से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज इंग्लैंड द्वारा IBC लीडिंग इंजीनियर्स ऑफ द वर्ल्ड 2007 के सम्मान से आप सम्मानित किए गए हैं। आप जनवरी 2011 में दिल्ली विज्ञान भवन में राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। सर थोड़ा सा, हाँ ठीक, थैंक यू। बैंकिंग वर्कर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति के फंड द्वारा स्वागत करने के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विद्यालय प्रबंध डॉक्टर प्रेम कुमारी मिश्रा जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को स्मृति स्वरूप अदाएं डॉक्टर प्रेम कुमारी मिश्रा जी। जिन कमलेश अवस्थी जी मंच पर विराजमान हैं, बहनों दिव्या त्रिवेदी कानपुर में देखो सामने, हाँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, हिंदी साहित्य के यशस्वी युवा समालोचक डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी जी के साथ 1956 में आपका विवाह हुआ। पति के असामयिक निधन के पश्चात अध्यवसाय की अनूठी मिसाल में आपने बदला है।
स्वर्गीय डॉक्टर अवस्थी के साथ बिताए समय की अलौकिक स्मृति इस जीवन यात्रा में आपके लिए सतत सत्यनिष्ठा एवं प्रेरणा स्रोत रही है। 27 जनवरी 1966 को आपने अध्यापन का प्रारंभ किया एवं उसे उत्तरोत्तर अपनी मेधा से संवारा है। सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली में 4 वर्ष के अध्यापन के पश्चात 1969 में आपके के कॉलेज कानपुर में समाजशास्त्र की प्रवक्ता नियुक्त हुई। सन 1992 में आपने हिंदी उपन्यासों के परिप्रेक्ष्य में परंपरा और आधुनिकीकरण सहित महत्वपूर्ण विषय पर काम करते हुए PhD की उपाधि हासिल की। श्रीमती अवस्थी ने सन 1995 में श्रेष्ठ युवा आलोचक को रेखांकित और पुरस्कृत करने के लक्ष्य से देवी भेंट करने भारतीय के प्रति लगाव और समर्पण आपको बचपन से ही परिवार से विरासत में प्राप्त हुआ। आपके श्रद्धेय पिता श्री पद्म भूषण स्वर्गीय श्री लाल शुक्ल स्वयं एक जाने माने साहित्यकार थे और उनकी अमर कृति राग दरबारी संपूर्ण विश्व में सुविख्यात है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में आपके सतत मार्गदर्शन में जागृत महिला मंडल महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए भी कार्य कर रहा है। यह मंडल प्रत्येक वर्ष अंध विद्यालयों के छात्रों की सहायता करता है तथा समाज के गरीब तबके के लाभार्थ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन तो करता ही है, साथ ही स्कूली बच्चों में पुस्तकें और कॉपियाँ आदि भी वितरित करता है। निर्धन से उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती हैं। जन जन के वे ही पूजे जाते हैं, वे ही पूजे जाते हैं। तो साल पहना उनका सम्मान इधर देखेंगे बहन रिचत जी, रिचत इधर देखेंगे। प्रभु जीवन पथ पर पुण्य मिले हमको पग पग पर सेवा का। उप प्रधानमंत्री भैया से आग्रह है कि उनका माल्यार्पण वबाई द्वारा स्वागत करने की कृपा करें। परिवार में हुआ था। आप 26 वर्ष तक सेना में सेवारत रहे। 1971 के युद्ध में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मिजोरम नागालैंड में आतंकवादियों से मोर्चा लेकर उन्हें परास्त किया। शैक्षिक जगत में बालक बालिकाओं की अच्छी शिक्षा है तो आप सतत प्रयत्नशील हैं। आपकी गृहस्थ विद्यालय पर प्रारंभ से है। विद्यालय समारोह की विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मानित अध्यक्ष था, जिनके सहयोग व आशीर्वाद से विद्यालय अग्रसर होता रहा है। अतिशय आदरणीय डॉक्टर कुमकुम पांडे जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ाती रहती है। ओंकारेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी मंच पर विराजमान है। भैया संदीप से निवेदन है उनका माल्यार्पण भाई द्वारा स्वागत। विद्यालय के उपाध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत चित्रकार लेखक डॉक्टर प्रेम कुमार मिश्रा जी मंच पर उपस्थित है। बहन महिमा से आग्रह है कि उनका शासन के न्यायाधीशों से आग्रह है कि आदरणीय प्रबंधक महोदय जी का माल्यार्पण भाई द्वारा सम्मानित। बेटा बीच से नहीं निकलना, रुकना पाठी जी मंच पर उपस्थित है। भैया संदीप से निवेदन है कि उनका माल्यार्पण और भाई द्वारा सम्मान करिए। से जुड़े हुए सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश वन सेवा के अधिकारी प्रबंध समिति के सम्मानित आदरणीय आदित्य त्रिवेदी जी पर उपस्थित हैं। भैया अभिषेक से आग्रह है कि आदरणीय त्रिवेदी जी का माल्यार्पण और भाई द्वारा।
जा रही हूँ। आज कुछ इतना आत्मविभोर हूँ मैं कि ऐसा मंच मुझे मिला है जिसमें बहुत से लोग मेरे साथ बहुत प्रारंभिक जब मैं शिक्षण कार्य में यहाँ आई थी तब से वो मेरे साथ थे। माननीय कमलेश जी, पूर्णिमा जी, गीता जी, और आज सबने मिलकर जो शहर में, देश में जो ऊंचाइयां पाई हैं उनको मैं पुनः नमन करती हूँ। और रेखा जी के विषय में मुझे ज्ञात नहीं था कि वो लाल शुक्ल जी की बेटी हैं, मुझे और भी अच्छा लगा। और यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों को तो आपने देखा, और मैं चूँकि चित्रकार हूँ और रेखा जी भी नाम से चित्रकार है, बहुत अच्छा लगा। भले ही वो संगीत विधा में है किंतु फिर भी हम सब ललित कलाएँ एक दूसरे की बहनें होती हैं और आपस में इतनी निष्ठा और प्रेम होता है, सब एक दूसरे पर आधारित होते हैं और सब साथ साथ चलते हैं, आनंद एक साथ होता है। साहित्य, संगीत और कला सभी की त्रिवेणी आज इस मंच पर है। मैं पुनः इस मंच की भव्यता को तहे दिल से नमन करती हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल से संबद्ध ये विद्यालय 1997 से शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत है। वर्तमान में ये विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा इंटर विज्ञान वर्ग से वित्त विहीन मान्यता प्राप्त संस्था है। वर्तमान में प्रधानाचार्य सहित यह 40 कुछ लाइट का कुछ ऐसा सा वर्ष 1911 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल विगत वर्षों की भांति 100% रहा तथा गुणवत्ता गुणांक के आधार पर लगातार 11वीं बार ए श्रेणी के उत्कृष्ट विद्यालयों में सम्मिलित होकर विद्यालय ने अपनी गुणवत्ता सिद्ध कर दी है। IIT JEE 2012 में कुमारी मानसी अवस्थी, चिरंजीव हिमांशु वाधवानी, चिरंजीव अमन त्रिपाठी, चिरंजीव उत्कर्ष त्रिपाठी, चिरंजीव सौरभ मेहरोत्रा ने सफलता अर्जित कर नगर का मान बढ़ाया है। चिरंजीव शिवेश श्रीवास्तव ने IIT जैम में राष्ट्रीय स्तर पर 70वां स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट परीक्षा 2012 में 115 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए, जिसमें 81 छात्र ससम्मान उत्तीर्ण हुए तथा हाई स्कूल के सभी 100 छात्र छात्राएं ससम्मान उत्तीर्ण हुए। प्रतिभावान छात्र चिरंजीव नीलेश वर्मा ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तीनों चरणों में सफलता अर्जित कर नगर के सम्मान को बढ़ाया है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वर्ष 2012 की एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा में 56 छात्र छात्राएं सफल हुए। चिरंजीव मलखान सिंह व चिरंजीव लविश नमन ने प्रदेश की उत्कृष्ट कार सूची में स्थान अर्जित किया। राज्य स्तरीय 70वीं जूनियर रेड क्रॉस प्रतियोगिता 2012 के उच्च प्राथमिक बालक व इंटर बालिका वर्ग में प्रथम स्थान तथा प्राथमिक बालक, हाई स्कूल बालक व इंटर बालक एवं प्राथमिक बालिका वर्ग में विद्यालय ने द्वितीय स्थान अर्जित कर कानपुर मंडल को गौरवान्वित किया है। भारत सरकार द्वारा विज्ञान विषय की उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिए जाने वाले अवार्ड ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप 2012 हेतु विद्यालय के 57 प्रतिभावान छात्र छात्राएं चयनित हुए। यह छात्रवृत्ति BSc व MSc हेतु 5 वर्ष तक 80,000 प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्यालय प्रबंध समिति के संरक्षक श्री मोहनलाल केडिया, अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा दुबे, श्रीमती माधुरी गुप्ता, श्रीमती शिक्षा दुबे, माननीय डॉक्टर रामाश्रय साहू, श्री SD श्रीवास्तव, डॉक्टर नीरजा अग्निहोत्री, डॉक्टर देवेश अवस्थी, श्रीमती निधि अवस्थी, श्रीमती कुसुम दुबे, श्री RK दुबे, श्री BK गुप्ता आदि सहृदय एवं उदार महानुभावों के सहयोग से प्रतिभावान छात्र छात्राओं को
आर्थिक व पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्र छात्राओं में रचनात्मक एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में समाज को प्राप्त होता है। माताओं के अथक परिश्रम, लगन एवं ध्येय निष्ठा से विद्यालय को ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी मिल सके जिनका IIT JEE, IIT JAM, NDA, AIEEE जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में चयन हुआ। IIT JEE 2012 में चयन भैया बहन अपनी अपनी संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, लेकिन उनकी माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा समारोह की अध्यक्षा माननीय डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी से विनम्र निवेदन है कि भैया बहन की माताओं को शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमती कृष्णा अवस्थी अध्यक्ष महोदया द्वारा सम्मानित हो रही है। इधर घूम जाइए। IIT JEE 2012 में चयनित तथा इंटरमीडिएट वरीयता सूची में 13वां स्थान प्राप्त भैया अमर त्रिपाठी की माता जी श्रीमती अंजू त्रिपाठी। लाइट छोड़ दिया गया। अमर त्रिपाठी की माता जी श्रीमती अंजू त्रिपाठी अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्मानित हो रही है। मेरा माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से सम्मानपूर्वक निवेदन है कि शैक्षिक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। भैया प्रणव कक्षा 12 हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की वरीयता सूची में 9वां स्थान तथा लगातार 8 वर्षों से पूर्ण उपस्थिति। भैया पूर्णेंद्र कुमार गुप्ता, भैया नीलेश वर्मा कक्षा 9 राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के सभी चरणों में चयनित अनुशासन प्रिय एवं शांतचित्त भैया ने शैक्षिक प्रतियोगिता में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भैया लवेश नवन कक्षा 9 एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा की प्रदेश स्तरीय क्लास सूची में चयनित तथा शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भैया मरखान सिंह कक्षा 9 एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा की प्रदेश स्तरीय क्लास सूची में चयनित तथा शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। भैया मोहिनीश त्रिपाठी कक्षा 12 अनुशासन प्रिय एवं व्यवहार कुशल भैया ने शैक्षिक प्रतियोगिता में सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित किया। भैया अंकुश मिश्रा कक्षा 11 अनुशासन एवं शांतचित्त भैया ने शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित किया। भैया चंद्र शुक्ला कक्षा 10 वर्ष पर्यंत उपस्थित रहते हुए भैया ने शैक्षिक गुणवत्ता में सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित किया। बहन रूपल द्विवेदी कक्षा 8 रेड क्रॉस प्रतियोगिता में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ बहन ने शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित किया। बहन निकिता वाजपेयी कक्षा 7 रेड क्रॉस प्रतियोगिता में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ बहन निकिता वाजपेयी ने शैक्षिक गुणवत्ता में सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित किया। भैया अनुराग त्रिपाठी कक्षा 6 निबंध लेखन में निपुण भैया ने शैक्षिक प्रतियोगिता में सर्वोत्कृष्ट स्थान का गौरव प्राप्त किया। भैया कृष्णा शुक्ला सुंदर लेख में धनी भैया कृष्णा ने शैक्षिक प्रगति में सर्वोत्कृष्ट स्थान अर्जित किया। भैया गौतम रघुवंशी वर्ष पर्यंत उपस्थित रहते हुए शैक्षिक गुणवत्ता में सर्वोत्कृष्ट स्थान। मास्टर कृष्णा दीक्षित क्लास 3 वेरी डिसिप्लिन एंड शार्प माइंडेड कृष्णा क्लास 3 got first position in academics. Master Arish Sehgal class 2 a good orator and active by honors of class 2 got first position. Master Tanmay Yadav topper of class 1 blessed with good handwriting skills. Master Vishnu Pratap Singh class nursery very sincere and enthusiastic boy Vishnu Pratap Singh of class nursery got first position in academics. Princess Ananya Sharma class PG well disciplined and sweet spoken Ananya Sharma of class PG got first rank in academics. विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर यज्ञ ने कि बहन शिवांगी को 5,000 रुपए की प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर नीजा चौधरी द्वारा अपने पूज्य पिता की स्मृति में डॉक्टर यज्ञ दुबे मेमोरियल स्कॉलरशिप 2,501 विशिष्ट शक्ति महोदया जी से निवेदन है कि बहन अनन्या को छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मेरा नाम माननीय
मां कल्याणी देवी अग्निहोत्री मेमोरियल स्कॉलरशिप के ग्रुप में क्लास फर्स्ट के छात्र यशस्वी प्रजापति को 2501 रुपए की धनराशि प्रदान करेंगे। 2001 रुपए कक्षा 9 की छात्रा अंजलि शुक्ला को प्रदान की जा रही है। डॉक्टर विशेषज्ञ की जन्म स्मृति में 4 मेधावी छात्र छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। अतः मेरा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी से विनम्र निवेदन है कि संचालक अध्यक्ष कक्षा 12 की मेधावी छात्रा निहारिका को छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। कक्षा 12 के छात्र चिरंजीव ऋषि दुबे को 5000 रुपए की धनराशि, डॉक्टर एस.एस. अग्निहोत्री मेमोरी तिवारी को 5000 रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान करने की कृपा करें। कक्षा 11 के छात्र चिरंजीव आयुष अग्निहोत्री को डॉक्टर एस.एस. अग्निहोत्री मेमोरियल स्कॉलरशिप के रूप में 5000 रुपए की धनराशि प्रदान करने की कृपा करें। माननीय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, जिनका जीवन परिचय तो दिया गया, लेकिन मैं उनका जीवन ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, पढ़ा हूँ और साथ अपने आज भी हूँ। हम दोनों ही व्यक्ति ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक ज़मीन की रक्षा करता है और एक ज़मीन से ऐसी उपजाऊ चीज़ें पैदा करता है जिससे हम सबका भरण और पोषण होता है। मेरे आज के मुख्य अतिथि का पूरा जीवन जो है वो इस सोच में चला जाता है कि मैं किस प्रकार से अपनी धरती माँ की सेवा करूं और धरती माँ को इस तरह से शक्तिशाली बनाऊं कि उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे भारतवासियों के जीवन के लिए कितने उपजाऊ हो सकते हैं और देश और विदेश में वो इसी बात की खोज में हर वक्त लगे रहते हैं। हम लोग भी जब उनसे मिलने कभी जाते हैं, शायद ही कभी उन्होंने हम लोग को अवसर दिया हो कि हम लोग उनके कार्यालय में जाते हैं, क्योंकि वो कार्यालय में अपने सारे समय व्यस्त रहते हैं और हर पल का वो सदुपयोग करते हैं धरती माँ की सेवा करने में। अभी भी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो सवेरे सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते भी अपने कार्यालय में स्वयं जाते हैं सुबह 8 बजे और जाके अपने हाथ से अपना कार्यालय खोल के बैठ करके सारे समय काम करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने बल्कि उनके कार्यालय में कोई भी नहीं होगा, लेकिन वो अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपनी सोच से सारे काम निपटाने के बाद वो 10 बजे के बाद अपने ये जो इसको परिवार जिसको उन्होंने आज दुनिया में समस्याएं, आज एक परिवार चलाना मुश्किल है, वो 10 लाख परिवार को स्वयं चलाते हैं और उन्हीं के प्रयासों से उनको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ उनको पुरस्कृत किया गया हो, उनके सम्मान का आदर किया गया हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ उनका हो। इसमें बहुत बड़ा सहयोग आज की अध्यक्षा महोदय डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी का है, जो हमारी भाभी हैं। उन्होंने हम लोग के सारे नखरे सहे हैं, उन्होंने हम लोग की उसी प्रकार से नखरे सहे हैं जिस प्रकार से यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान के नखरे सहे थे। हम लोग काफ़ी छोटपन में शराब भी करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हम लोगों को कुछ नहीं कहा और इग्नोर किया और उन्हीं की प्रेरणा और प्रोत्साहन से आज हम लोग जहाँ भी पहुँचे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की देन है। साथ में आज की जो विशेष अतिथि हैं डॉक्टर रेखा अवस्थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब भी मुख्य अतिथि कहीं जाते हैं वो उनके साथ हमेशा जाती हैं, इसलिए कि ताकि उनको किसी प्रकार की वो ना हो और वो मन से तन से सब जो है वो अपने कार्य को कुशलतापूर्वक चलाएं। उनका विशेष अनुरोध रहता है कि हम साथ जाएंगे, चाहे वो जहाँ जाए। वो कार्यालय में भी नहीं जाती हैं, लेकिन जिस तरह से भी होता है वो उनका समय से भोजन, समय से उनकी आवश्यकता है उनका ख्याल रखती हैं। उनके आए हुए अतिथियों का वो स्वयं स्वागत करती हैं अपने घर पे और बहुत ख्याल रखती हैं। इन दोनों ही व्यक्तियों का, मुख्य अतिथि और उनकी पत्नी का, हमेशा ये रहता है कि हम किस तरह से अपने समाज में जो बच्चे हैं उनका, जो कि आगे आने वाले देश के नागरिक हैं, उनका मैं किस तरह से
क्या कर सकता हूँ, हर वक्त वो सोचते रहते हैं। एक बार हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो बोले बच्चों का भी बीमा होना चाहिए। मैं इसमें इसको टोक्यो जो इन्होंने अपनी संस्था खोली है उसमें बोले बच्चों का भी बीमा होना चाहिए। किसानों की उनको चिंता है, वो हर किसान को भारतीय एयरटेल के माध्यम से हर किसान को मोबाइल फ़ोन देना चाहते हैं। हर किसान के पास वो चाहते हैं कि वो काफ़ी पैसे वाला बने, उसकी जो उपज हो उसका सही उसको दाम मिले, उसके जो भी वो पैदावार करता है उसकी मेहनत का उसको पूरा लोग मिले। जय हिंद। Go on,
Chairman, fertilizers, Association of India के सम्मानित President, International Fertilizers Association के गौरवान्वित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सतत विभूषित एलुमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस VSU से है सम्मानित प्रतिभाओं अनुप्राणित जीवन मूल्यों से अनुप्राणित सृजनशील चिंतन है सत्यशील और त्याग से अभिवेश जीवन दर्शन है मानवीय मूल्यों से सिंचित धर्म पत्नी श्रीमती रेखा जी मानवीय मूल्यों से सिंचित धर्म पत्नी श्रीमती रेखा जी संस्कारों की मूर्त रूप और विदुषी है संगीत विधाती विदुषी है संगीत विधाती विदुषी है संगीत विधाती धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ सेवा की अनुपम प्रतिकृति है इसको जागृति महिला मंडल अध्यक्ष पद पर आप विभूषित हैं असहायों पीड़ित ग्रसितों की सेवा हित अर्पित जीवन निर्धन और विकलांग छात्रों का बहुविधि करती समुन्नयन
प्रेरक शुभ दर्शन है। जन जन की सेवा में अर्पित त्याग पूर्ण चिंतन है। दर्शन और मार्गदर्शन से ऊर्जा मिले निरंतर। दर्शन और मार्गदर्शन से ऊर्जा मिले निरंतर। सृजनशील व्यक्तित्व अमर हो। सृजनशील व्यक्तित्व अमर हो। दीर्घायु हो जीवन। दीर्घायु हो जीवन। दीर्घायु हो जीवन। दीर्घायु हो जीवन। प्रतिभाओं के मोती रूप मध्यमान आपका अभिनंदन। औद्योगिक संवर्ग के गौरव। औद्योगिक संवर्ग के गौरव को अर्पित शत शत वंदन। प्रतिभाओं के मोती रूप मध्यमान आपका अभिनंदन। मध्यमान आपका अभिनंदन। मध्यमान आपका अभिनंदन। मेरा विद्यालय के संगीताचार्य कविता दीदी जी से साक्षात थैंक यू। बीएनएसजी शिक्षा निकेतन के सम्मानित प्रधानाचार्य डॉक्टर अंगद सिंह जी से सविनय निवेदन है विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय हरिद्वार भेंट करने की कृपा करें। हाँ जी। मुख्य अतिथि के गरिमा महत्व को अलंकृत कर रहे सम्मानीय ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री रामनाथ सिंह जी, डॉक्टर श्रीमती कमलेश अवस्थी जी, कर्नल पांडे जी, रेखा जी, माननीय मोहनलाल केरिया जी, श्रीमती प्रतिमा दुबे जी, डॉक्टर प्रेम कुमारी मिश्र जी, श्रीमती माधुरी गुप्ता जी, श्रीमती शिक्षा दुबे जी, प्रभुदा शुक्ल जी, श्री आर डी त्रिवेदी जी, डॉक्टर वीपी राय जी, श्री स्वर्णेंद्र दत्त त्रिपाठी जी, डॉक्टर गंगा सिंह जी, डॉक्टर नीरजा अग्निहोत्री, माननीय योगेंद्र सिंह जी, कुमकुम जी, विद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमारी मिश्र जी, विद्यालय के माननीय शिक्षक, समारोह में पधारे हुए अतिथि एवं छात्रों और छात्राओं, एक मधुर शब्द मेरे बारे में कहे हैं कि मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि बहुत छोटा हूँ, और आपने जो मेरी व्याख्या इतनी बड़ी कर दी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ छुप जाऊँ। मैं इस व्याख्या के काबिल नहीं हूँ। मेरे जो भी छात्र छात्राओं का कार्यक्रम देखा, जो मैंने उनके विचार सुने, जो बच्चे यहाँ पुरस्कार लेने आए, वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि अपने देश का कोई एक बड़ा अच्छा भविष्य भी नहीं कि इस उम्र तक आते आते
आदमी को जैसे बोलते हैं कुछ सठिया जाता है, कुछ निगेटिव हो जाता है। कर रहे हैं वह एक क्रांतिकारी कदम है। मेरा यह मानना है कि 21वीं शताब्दी दुनिया की एक बड़ी क्रांतिकारी कदम होगी। ये वो शताब्दी होगी जिस शताब्दी में हमें एक दूसरी दुनिया भी में आदमी जाएगा, मनुष्य जाएगा, और हमारी एक दूसरी दुनिया का भी निर्माण होगा। दुनिया समाप्त नहीं होगी, पर एक और दूसरी दुनिया का निर्माण होगा। आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी साइंस है, जो हमारे इन्वेंशन है, जो हमारा संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे जब हम आपके बराबर बच्चे थे। और दुनिया कितनी जल्दी इस कल्पना को साकार कर दिया। तो जो मैं आपसे बात कह रहा हूं वो बात ऐसी नहीं कि साकार नहीं होगी, ये साकार अवश्य होगी। और उस साकार भविष्य में वो देश सबसे आगे होगा जिस देश में महिलाओं का सम्मान होगा, जो देश सबको एक लेकर चलेगा, इसमें प्रजातंत्र होगा, इसमें हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। मेरे बारे में हमारे परम मित्र कर्नल पांडे ने भी बहुत कुछ कहा। मैं खाली इतना आपको कह सकता हूं, आप बच्चे हैं, आपको अपना भविष्य के लिए देखना है कि मैंने कभी जिंदगी में लौट के नहीं देखा। जो हुआ वो कल था, जो होना है वो आज है, और जो होगा वो कल है। तो जो आज है और आने वाला जो कल है वो हमारे लिए ज़रूरी है। हमने जो कल किया वो कल गया। तो हरदम याद रखिए, कभी पीछे लौट कर मत देखिए, हरदम आगे बढ़ते जाइए। सफलता अपने आप आएगी यदि हमें विश्वास है, यदि हम सही रास्ते पे हैं, यदि हम सही काम कर रहे हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको वो काम नहीं करने देगी। बड़े बड़े साम्राज्यों को किसने झुकाया? उन लोगों में जिनमें आत्मविश्वास था। दुनिया को मैथमेटिक्स जीरो किसने दिया है? उस देश ने दिया जिसको अपने विश्वास था, इसको ज्योतिष और गणित का ज्ञान था। वही ज्योतिष और गणित से आज कंप्यूटर का निर्माण हुआ। आज जीरो नहीं होता तो किसी भी हालत में कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता। गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य को झुकाया। उनके पास क्या था सिवाय अपने आत्मविश्वास के? अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी, गुलामी खत्म की अपने देश से। उनके पास क्या था उस गुलामी को खत्म करने का साथ सिवाय अपने आत्मविश्वास के? तो हमारे बच्चों को ये आत्मविश्वास होना चाहिए। और मैंने आज यहाँ इन बच्चों में आत्मविश्वास देखा है कि हमारा देश इन बच्चों से आगे बढ़ेगा। मैं आप अपने रंगारंग कार्यक्रम में हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। खाली एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि हरदम ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति तुमसे छोटा नहीं है। किसी को अपने से छोटा नहीं समझना। कोई गरीब है तो ये मत समझना कि वो गरीब है।
यदि आपके पास आज कुछ है तो उसमें आपको गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप गर्व नहीं करना, हरदम विनीत रहना, हरदम हर एक को अपने बराबर समझना, हर एक को ऊंचा उठाने का प्रयास करना, उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करना, ना कि उसको नीचा गिराने का। सफलता अपने आप आपके कदम चूमे। मैं आज आपसे इतना प्रसन्न हूँ और आपने हमारा मन मोह लिया है कि मैं इस विद्यालय के लिए अपनी संस्था इफ्को की तरफ से 25 लाख रुपए का अनुदान भी देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अनुदान एक ऐसी शिक्षा की तरफ लगाई जाएगी जो कल की शिक्षा है। नैनो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, बायोटेक्नोलॉजी है, जो हमारे जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारी फसलें हैं उनको जो अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमारे पास हम देखते हैं, हम जाते हैं गांव में, हम जाते हैं लोगों के पास तो कृषि की शिक्षा बहुत कम हो गई है। लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे पैदावार होती है, कैसे जमीन से पौधा उगता है और क्या खाना हम खाते हो कैसे बनता है। यदि आप वो शिक्षा भी इस संस्था में, इस विद्यालय में शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा कदम होगा और इस देश की खाद्य सुरक्षा और इस देश की भूमि सुरक्षा दोनों में काम आएगा। मैं एक बार फिर से कर्नल पांडे का और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का और इस विद्यालय की जो प्रबंध समिति है उसका धन्यवाद करना चाहूँ। और छात्र छात्राओं, आपने अपने चरित्र और अपने काम से मेरा मोह मोल लिया है। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। उद्बोधन से आपके पथ में हुआ प्रकाश, पक्षी को या दिख गया कहाँ क्षितिज आकाश, कहाँ क्षितिज आकाश। यहाँ की नैसर्गिक सुषमा ने न केवल सबको अभिभूत किया है, अपितु महान विभूतियों की जन्मदात्री भारत भूमि ने मानवता के जैसे दृष्टांत विश्व को दिए वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। माँ वसुधा की इसी भव्यता को अभिव्यंजित करते हुए प्रस्तुत है राष्ट्र वंदना, जिसे स्वर दे रहे हैं भैया संकल्प शुक्ला। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मान बिंदु यहाँ भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मान बिंदु यहाँ भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। गंगा यमुना घट से निकली जहाँ एक हो कर बहने को, जहाँ प्रकृति के पास रहा है सदा पुरुष से कुछ कहने को, उस भारत में पराक्रमों का प्यारा झंडा गड़ा रहेगा,
जिसकी मिट्टी में पारस है, स्वर्ण धूलि उस बंग भूमि की, पंच नदों के फव्वारों से सिंची बहारे पुण्य भूमि की, शेष बिंदु श्रीनगर सिंधु तक सेतु बंधु भी अड़ा रहेगा। भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। जिस धरती पर चंदा सूरज सांझ सकारे नमन चढ़ाते, षड ऋतु के सर गम पर पंछी दीपक और मलहार सुनाते, वही देश मणि माम सुधा के हृदय हार में जड़ा रहेगा। भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा। मानवता का मान बिंदु यहाँ भारत सबसे बड़ा रहेगा, भारत सबसे बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। अब मेरा कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रही सतत सक्रिय, सौम्य व स्नेहिल व्यक्तित्व की धनी, अविरल मेधा संपन्न डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी से अति सम्मान पूर्वक निवेदन है कि वे अपने शब्द सुमनों से हमारा मार्ग आलोकित करने की कृपा करें। आशीष आपका हमें मिले, हर पल यही प्रतीक्षा है, दम हट जाएगा जीवन का, बस यही हमारी दीक्षा है, बस यही हमारी दीक्षा है। प्रधानाचार्यगण अंगद जी और ओंकारेश्वर जी के प्रिंसिपल जी और सभी सदस्यगण जो बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, डॉक्टर अवस्थी, कर्नल पांडे और हमारे प्यारे बच्चे जिन्होंने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, इतने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से हमें लगता है कि वहाँ की शिक्षिकाएं तो हैं ही, लेकिन उनके माता पिता सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके सानिध्य में उन्होंने इतनी बड़ी भारतीय संस्कृति को सीखा है और ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। हमें सबसे अच्छी जो बात लगी कि सारी पूरे भारत की जितनी भी संस्कृतियां हैं, सबको यहाँ पर उन्होंने एक ही मंच पर और बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। न केवल प्रस्तुत किया, लेकिन जिसमें उन बच्चों की जो तत्परता थी, जैसे कि अवस्थी जी ने अभी कहा था कि जो पहले हम लोगों के ज़माने में नहीं थी, बच्चों ने इतनी जल्दी स्विच ओवर किया था, इतनी जल्दी जल्दी सारे बदले थे कार्यक्रम और इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए। साथ ही उनके हाथों की ताल और पैरों की लय सब बिल्कुल बराबर थी, कहीं किसी की भी गलत नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि उस समय उन शिक्षिकाओं का तो साथ है ही, लेकिन माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। हम उन सबको धन्यवाद देंगे, शिक्षिकाओं को भी देंगे, अपनी जो प्रबंध समितियां हैं दोनों उनको भी देंगे, और पूरी जो बच्चे हैं आशीर्वाद के पात्र हैं और वो जितने आगे बढ़े हैं उससे और निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा ऐसा विश्वास है।
वो कदम ताल कभी तोड़ेंगे नहीं, कभी मन में विचार गलत लाएंगे नहीं, तो वो आगे जरूर बढ़ते जाएंगे। उनके लिए और उनके माता पिता के लिए, यहाँ जितने लोग बैठे हुए सबके लिए हमारे मन में बहुत अगाध श्रद्धा और आशीर्वाद का भाव है। धन्यवाद। अब छात्र संसद के उप प्रधानमंत्री भैया संदीप कुमार, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदया, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं अन्य मंचासीन अतिथियों व आगंतुक महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। अलंकृत कर रहे मंच पर विराजमान नीति, कर एवं वैदुष्य का मणिकांचन संयोग, जिनके व्यक्तित्व का अलंकरण है, ऐसे कुशल प्रशासक, उदार चेता एवं ध्येयनिष्ठ प्रबंध निदेशक इफ्को डॉक्टर US अवस्थी जी, विशेष अतिथि के रूप में पधारी सौम्यता की प्रतिमूर्ति परम मेधा संपन्न श्रीमती रेखा अवस्थी जी एवं समय प्रबंधन के अनुपम दृष्टांत, अति अनुशासित, सर्वजन हिताय भावना से ओतप्रोत माननीय कर्नल श्री SN पांडे जी, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम की शोभा द्विगुणित हो उठी है, ऐसे परम विदुषी डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी एवं मंचस्थ सुधीजनों का स्वागत कर विद्यालय धन्यता का अनुभव कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आप जैसे सुधीजनों का स्नेह व सानिध्य प्राप्त हुआ। हम कृतज्ञ हैं कि आपकी स्नेहिल एवं आत्मीयतापूर्ण उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हो सका। आज जिनके आगमन से खिल गए हृदय सुमन, आज जिनके आगमन से खिल गए हृदय सुमन, हम नन्हे पौधों को मिल गया एक सम्मल उपवन, सम्मल उपवन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें न्यू टेक्नोलॉजी, कृषि शिक्षा व परिश्रम का महत्व बताया। विज्ञान ने बहुत सी उपलब्धियां अर्जित कर ली हैं। आपने बताया कि हमें जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, अपितु निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाए रखना चाहिए। आगमन आज आपका, सौभाग्य है हमारा, उद्बोधन आपका, पाथेय है हमारा। आगंतुक महानुभाव, अभिभावकगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह आशा करता हूँ कि हम आपके स्नेह एवं सानिध्य के कृपा पात्र बने रहेंगे। हम चले अविचल जीवन पथ पर, है यही अभिलाषा सदा। हम चले अविचल जीवन पथ पर, है यही अभिलाषा सदा। आपका आगमन होता रहे, प्रेरणा मिलती रहे सदा, प्रेरणा मिलती रहे सदा। धन्यवाद। We have some more attraction to proceed the charm of this wonderful evening. Coming to our next performance, this time we have amazing and enthusiastic performance before you. A folk dance named Ghumar. It is named Ghumar as women participating in this dance take round and round many times. It shows cultural as well as traditional value of Rajasthan. This dance is the symbol of caliber of Rajasthani women who bearing many pots and pans over their head move swiftly and fastly, giving up the message that a woman can play many roles simultaneously. At last, I would like to give my heartful thanks to the participants of this energetic performance. So please encourage them with clapping. Thank you.
नृत्य घूमर। सच, हमारी भारतीय संस्कृति विविध लोक रंगों एवं कलाओं का मिलन है। अभी घूमर जहां अपनी सुमधुर ध्वनि से संस्कृति एवं कला परिवेश का परिचय करा गया, वहीं अपने जीवंत हाव भाव से राजस्थान वासियों के हृदय की कोमलता को भी व्यक्त कर गया। इसी कला प्रियता के कारण ही तो राजस्थान में रंगों का विलक्षण संयोग प्रकृति एवं मानव प्रवृत्ति के मध्य दिखाई देता है। ऐसा अद्भुत संयोग तो शायद ही कहीं देखने को मिले। सच, मनमोहक घूमर नृत्य ने तो हम सभी में मधुरता एवं खुशहाली सी घोल दी है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ अंशिका दीदी को। गिरकर उदरदरी से हमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, माता तुल्यमयी है। वेद काल से ही ऋषियों ने भूमि को माता कहकर उसका वंदन किया। सच, जिस भारत पर हमने जन्म लिया वह हमारी माता तुल्य है। प्रकृति के माध्यम से जिसने हमें अहिंसा, दया, परोपकार एवं मानवता का पाठ पढ़ाया तथा जिसके हृदय में अनेक स्वरों को भरकर कभी ना विलग होने वाली मानवता रूपी सागर की लहरें हिलोड़े ले रही हैं, अतः ऐसी भारत माँ के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उसका वैभव पुनः लौटाएं। भारत पुत्रों, भारत फिर से वैभव पाए परम। भारत पुत्रों, भारत फिर से वैभव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म, भाई होता राष्ट्र धर्म। घरों में, मंदिरों में, धार्मिक आयोजनों में हम भगवान की आरती करते हैं और यह परंपरा हमारी जीवन शैली का एक अंग बन गई है। इसी भक्ति भावना का विस्तार रूप है भारत माँ की आरती। वेद काल से ही ऋषियों ने भूमि को माता कहकर उसका वंदन किया। हम भी वंदन व नमन करते हैं। सच, भारत माता के प्रति यह अर्पण व वंदन देशभक्ति का ज्वार जनमानस को अपने साथ बहा ले जाता है। तो आइए हम सब भी इस अभियान से जुड़कर वंदे मातरम गाकर करते हैं भारत माँ की आरती। दो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचारती, वंदे मातरम गाकर कर लो माँ की आरती, भारत माँ की आरती। जय जय मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, कुसुमित धूमदल शोभिनी। शीतला
Hare